हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप हमारी वॉइस ऑडिबल है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। सो लेट्स बिगिन। इसमें स्पीकर दिनेश सर और मैं होंगे। तो फर्स्टली दिनेश सर के बारे में मैं इंट्रोडक्शन एक दे देता हूँ। सो ही हैज़ क्वालिफाइड एनईटी एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स. ही हैज़ ऑल्सो क्लियर्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम्स and he was the former assistant professor at Delhi University, right? And I graduated from NLU Delhi a few months back. और पहले दिनेश सर स्टार्ट करेंगे, देन आई विल टेक ओवर. सो ओवर टू यू दिनेश सर. Okay. Thank you very much, Alit ji. वेलकम सर. So, dear students, today I will share you some important tips that how to crack CLAT or OLET examination in 45 days. So, आज के सेशन में हम आपके साथ most important tips डिस्कस करेंगे. If you will apply these tips or follow these tips, then you will be able to qualify these examination 100%. So now we come to these tips one by one. So all of you are aware about the CLAT examinations. So before coming to the main discussion part, there is an important announcement for all of you. Admissions are open at Manolaw classes for upcoming batch of 2022 and 2023. And we are also starting a crash course from 15 February. So all of you may join the course for getting the best result. So now we come to some basic information about the CLAT, which you people may also be having. So basically, CLAT is an examination regarding the admission in NLUs. So बच्चों क्या होता था 2008 से पहले we were having only 3-year law course. हमारे देश में 3-year law course होते थे, लेकिन 2008 में लॉ के प्रोफेशन को और इम्पोर्टेंट बनाने के लिए और इसमें एक एज प्रोवाइड कराने के लिए 5 years कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया. और 5 years कोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसके लिए स्पेसिफिकली NLUs एस्टेब्लिश किए गए. NLUs मीन्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज. सो मेन पर्पस behind introducing this NLUs was that we should get expert student in law. ठीक है, like this IIT, like NEET. So law is also very important profession. So in NLUs you can get the admission through 2 ways. One is after qualifying the CLAT examination, and second qualifying by the IELTS examination. So basically IELTS examination is only taken by the NLU Delhi. Means जो students NLU Delhi में admission लेना चाहते हैं, they need to qualify IELTS examination. But if any students wants to get the admission in any NLU, then that student need to qualify CLAT examination. I think this point is clear to all of you. So in our country, we are having around 23 NLUs, and all these NLUs have around 2,500 seats. Here, the admission is taken on the basis of merit. So if your merit is high, then you will get the admission in the best NLUs. And if your this score is comparatively low, then you will get the admission some other NLUs. But all are NLUs and all are having equal values. So now we come to next aspect. After or apart from the CLAT and IELTS examination, you can also get the admission in BA LLB program through various law entrance examinations like SAT. So SAT is an examination. It is taken by Symbiosis University. So Symbiosis is a private university, but it is very good for the LLB entrance examination. So if any student is not able to get the admission in CLAT or NLU, then that student can get the admission in Symbiosis University by qualifying SAT examination. Next is the LSAT. So it is also the law entrance examination by the other private university like WIT School and this Jindal Alliance and WIT Law School. So
By qualifying this LSAT examination, a student can get the admission in Jindal, Alliance and Whitlaw schools. Next is the MHSAT. So this is the special entrance examination for Maharashtra Common Entrance Test. So if anybody wants to get the admission in Maharashtra, then that candidate need to qualify MHSATs. Next is BHU entrance examination. So Bharat Hindu University. So if any person wants to get the admission in this university, then that student need to qualify this examination. So first of all of you must try to get the admission in the best NLUs like Delhi, this NLU Delhi and the Bangalore. But if you are not able to get the admission in these top ranking schools, law school, then you should get the admission in any other NLUs. So in the today's webinar, I will tell you, and my colleague Alinji will also tell you some of the most important tips. If you will apply these tips, it is our guarantee that you will be able to qualify examinations. So why I'm telling all these? Because I'm teaching the law even before the introduction of this CLAT examination in India. So CLAT examination introduced हुआ था 2008 में, और I'm teaching law even before that. So I have seen the question paper of every year. I know the important topics, important questions, important areas of the law entrance examinations. So I will take some of the subjects, and some of the subjects will be taken by my colleague Alinji. So if we talk about legal aptitudes, so in legal aptitudes, in CLAT examination, you get 35 to 39 questions. तो जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अब CLAT एग्जामिनेशन पैसेज बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया है. अर्लियर इसमें MCQ पूछे जाते थे and it was also principal fact based examination, but now it has become passage based examination. So it means that now you also need to change your approach. So how you can change your approach? Basically, I am right now telling you the planning regarding the LA sections. Then I will discuss the other subjects as well. So in LA section, you will get 35 to 39 questions. And in 39 questions में से, you need to emphasize upon 4 important law subjects. What are the subjects? Subject is Constitution of India. So first subject is Constitution of India. Second subject is criminal law, and in criminal law, specifically the IPC. Third is law of tort, and fourth one is the law of contract. So out of 39 questions, around 35 questions will be from these 4 subjects. So we call them main subjects in the law. And 4 questions will be from other law subjects. These subjects may be like IPR, like the Motor Vehicle Act, like Hindu Marriage Act, etc. So we have classified all these subjects in 2 ways. One is the main subject and other is the other subject or subsidiary subject. We have make a question paper, or we have segregated the important topics of all the law subjects, so that you people need not to do work hard at that point of time. And we have analyzed the question paper since 2008. जब से ये CLAT एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, तब से हमने इसके हर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है. And on the basis of that analysis, we have prepared a list of important topics. And we have seen that every year, examiner asks the question from that particular area or that particular topics. For example, if I take the example of Constitution of India. So dear students, in Constitution of India, you are having 395 articles, but all the 395 articles are not important from your examination point of view.
In Constitution of India, you will get around 10 questions. 10 questions here means you will get 2 passages. आपको Constitution of India से 2 passages आएंगे. And here you need not to study all the 395 articles. Here we will tell you to study only around 60 articles or 70 articles, which are most important from your examination point of view. And it is our guarantee, or it is my guarantee, that if you will study all these 60 to 70 articles, you will be able to solve, or you will be able to qualify this LA sections in respect of the Constitution of India. Similarly, if we come to IPC, that is the criminal law. In criminal law, there are 3 subjects. One is IPC, second is CRPC, and third is Indian Evidence Act. So most of the questions examiner asks from IPC. Suppose you will get 10 questions from IPC. So in 10 questions, our IPC is having 511 sections. But you need not to study all the 511 sections. In IPC, I will tell you on the basis of my experience around 50 sections, and it is my guarantee that if you will read these 50 sections, you will be able to qualify IPC section. So यहाँ पर आपको केवल 60 सेक्शन ही पढ़ने हैं. कौन से सेक्शन पढ़ने हैं ये हम आपको बताएंगे. That is the reason you will be able to qualify, or that's why you will be able to qualify this CLAT examination in 45 days. देखिएगा, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, so it will require a lot of time. लेकिन here you are having less time, so that's why these tips will be very helpful for you. Similarly, if you talk about the law of this TOT, so in the TOT you will get around 5 to 7 questions. So these will be from some important topics. For example, generally there are 15 topics in the law of TOT, but 4 to 5 topics are most important, from which examiner asks question every year. Means अगर आपके law of TOT में 15 topics हैं, so you need not to read all the 15s, but we will teach you 5 most important topics, and from these 5 important topics, you will be able to get the question. Now we come to contract. So from contract, you will also get around 10 questions in your examination. So contract has been divided into 2 parts. One is contract first and other is contract second. So most of the questions are asked from contract first. For example, in the last examination of CLAT, that is 2021, there were 15 questions from section 3, 4, 5, 6 and 1 judgment. So I know that that is the most important area, means acceptance of the contract is the most important area, and from that area examiner has asked 15 questions. तो यहाँ पर आपको इस तरह से इस प्लानिंग के हिसाब से आपको प्रोसीड करना है. Now we come, some of the questions will also be asked from the landmark judgments and the important bills and act. So what judgment is landmark for you? It will be discussed or it will be told by our faculty or by me. आपको देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आते हैं, ठीक है, बट एवरी जजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट जजमेंट, दिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय अस टू ऑल ऑफ यू. और मैं अपने एक लॉ डिकोडिफाइड है जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें लॉ डिकोडिफाइड पर मैं एवरी मंथ आई डिस्कस sometime one important judgment and sometime 2 landmark judgment. So if you will refer my those videos, so you will be able to understand that concept thoroughly. Secondly, what are the important bills and what are the important acts or what are important constitutional amendment? This information will be provided by us to you. So जिससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा. So you will have to you need to follow us. Second, if we come to the practice principle and fact-based examination. So basically, principle fact-based questions are not asked in the
this CLAT examination. But these are asked in other law entrance examination like IELTS and the other law entrance examination, this SAT, MS SAT, etc. So आपको कैसे करना है? So there are some techniques to solve these questions. For example, general rule is this: suppose you are getting 5 questions, suppose आपके पास 5 questions हैं and these questions are principle and fact based, ठीक है? So general क्या होता है, in 5 में से 3 questions में you will be given a principle, legal principle, means law की factual situation क्या है या law का principle क्या है. For example, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. वो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. सो ये आपका प्रिंसिपल हो गया. एग्जामिनर विल क्रिएट ए सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सो दैट विल बी ए फैक्चुअल सिचुएशन फॉलोड बाय द 4 दिस ऑप्शंस ए बी सी डी. तो यहां पर आपको उस प्रिंसिपल को फैक्ट में अप्लाई करना है. सो हाउ यू विल बी एबल टू डू इट? सो यू विल बी ओनली एबल टू डू इट if you know the concept very well. So we will teach you in our classes concept in a very well manner. Similarly, sometimes what the examiner does, sometimes examiner reverse the principle and means कभी-कभी examiner क्या करता है, जो law की सही position होती है उसको reverse करके पूछता है. So you have to be ready for that. So there are certain tricks and tips to understand that. We will also teach you all these tricks or methods in our classroom. Next, what you need to do, you should read the Hindu newspaper or Indian Express newspaper. And इस newspaper में students आपको केवल important news पढ़नी है. You need not to study all the news because all are not relevant for you. So in your competitive examination, it is very important that what you should leave. ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है. क्योंकि देखिए जब आपकी स्टडी कम होती है तो दैट इज द इफेक्टिव स्टडी. अगर आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन ऑल दीज थिंग्स. तो आपको क्या करना है, आपको पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन पे और केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही आपको पढ़नी है, जिससे आपका रिविजन का टाइम भी कम होगा और आपका हार्डवर्क भी कम होगा. And in the minimum effort, you will be able to get the maximum result. So now we come to the next subject. Next subject is the general knowledge and current affairs. So this is very important subject again, and you will get around 35 questions from this part. तो इससे आप around आपको 35 questions इस subject से आपको मिलेंगे. अब इस subjects को जो हमने एक analysis किया है, whatever analysis, so basically in general knowledge part or current affair part, every news is not important. For example, while you study the Hindu newspaper or any other newspaper, so the Hindu newspaper is the best newspaper from your competition examination point of view. अब पहले I will discuss all these 4 subjects. So the news relating to economics is most important. Harshvardhan, I am referring for your questions. So the news relating to economics and science and technology, these news are very important. Second point, suppose there are 16 pages in a newspaper. एक newspaper में 16 pages हैं. So here you need to study only 2 to 3 pages only. So you will reduce your time. अब 2-3 में क्या होंगे देखिएगा, you need to refer science and technology information, you need to refer economic information, and you need to refer editorial page of the Hindu newspaper. In editorial में जो editorial page होता है उसमें बड़ी important information होती है. You should not study the news relating to politics, relating to industry or this media or this film industry. You need not read all these news. आपको क्या करना है, any other news which is of national level or of international level, and in international level specifically related to UNO. UNO means United Nation Organization. तो देखिएगा जैसे कोई टॉपिक है कि whether India should be the permanent member of Security Council or not, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको
पढ़नी चाहिए। या जैसे कि हमारा एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस गया था, ठीक है, कुलभूषण जाधव का। सो इस तरह की न्यूज आपको पढ़नी चाहिए कि व्हाट वाज द लीगल पॉइंट, एंड यू शुड स्टडी द न्यूज फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इस सब न्यूज को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि द न्यूज रिलेटिंग टू पॉलिटी। अब यहाँ पर जो पॉलिटी की न्यूज है, सो पॉलिटी में आपको ये नहीं पढ़ना है कि कौन सी पॉलिटी इलेक्शन जीतेगी, वो नहीं पढ़ना आपको। आपको पढ़ना है उसका सब्सटेंस। सब्सटेंस इन द मीन्स कौन सा नया बिल हमारे देश में आया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, ठीक है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ दैट बिल। सेकंड, सब्सिक्वेंटली if a bill has been enacted or the of a bill or a bill has become an act, अगर कोई बिल एक एक्ट बन गया है, so what are the important provisions of that act, what are the lacunas in that bill. For example, our parliament repealed 3 laws regarding the farmer reforms, ठीक है, और agricultural reform. So you should understand the controversy behind that, means why a particular law has been enacted by the parliament, एक particular law को parliament ने क्यों enact किया है, and what are the consequences of this law, how this law is going to be beneficial to the society. तो आपको कोई भी आप न्यूज पढ़ेंगे तो उस न्यूज का आप एक क्रिटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, ना कि उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को। सेकंड पॉइंट ये है बच्चों, कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आपको रटना नहीं है। मीन्स नाउ द नेचर ऑफ योर एग्जामिनेशन हैज बीन चेंज्ड कंप्लीटली। अब आपके एग्जामिनेशन का नेचर पूरी तरह से चेंज हो गया है। सो नाउ यू हैव टू बी मोर एनालिटिकल इन योर अप्रोच कंपैरेटिवली रादर देन द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो आपको पहले बच्चे क्या करते थे कि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रटते थे और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के नोट्स बनाते थे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते होंगे कि आप न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते होंगे। नो, नेवर डू इट, कोई फायदा नहीं है उसको करने से। क्यों नहीं है? देखिएगा, आप जब किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। वो बहुत टाइम होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, हम डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस होता है हमारा, सो आप उसको रेफर कर सकते हैं और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वही आप सबको डिटेल्ड में दी जाती है। अगर आप पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ के हमारे द हिंदू न्यूज एनालिसिस को रेफर करेंगे, इट इज माय गारंटी यू विल बी एबल टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन द करंट अफेयर। सेकंड पॉइंट, हम एवरी मंथ के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफर करेंगे, सो आप क्वेश्चन 100% वहीं से आपको आ जाना है। क्योंकि ऐसा इतने कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन वेरियस एग्जामिनेशंस इन आवर कंट्री like UPSC, like the SNET, like law entrance examinations, CLET, IELTS, all the examinations. So some important areas are important, and these areas are important from every examination point of view. So यहाँ पर जो important area है वो हर एग्जाम के लिए important है। जरूरी नहीं है कि वो केवल क्लैट के लिए important है, वो आईलेट के भी लिए important है। What is important area? This will be guided by us to all of you. इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। नाउ हम आते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री। सो बच्चों, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से आपको जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज हैं, दीज आर मिनिमम। मींस इफ यू आर गेटिंग अराउंड 30 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चंस फ्रॉम जीएस, सो हार्डली यू विल गेट 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी और हिस्ट्री। क्योंकि अब जो हमारा टाइम है, दिस इज नॉट ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, rather examiner more focus upon the science and technology and the economics part and some of the part of the polity. So geography और history पर आप कम फोकस कर सकते हैं और इवन आप उसको लीव भी कर सकते हैं। देखिएगा, आप इतना सारा बर्डन लेकर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे 45 डेज में। तो इन 45 डेज यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव, और हम आपको बताएंगे कि कहाँ आपको कितना सेलेक्टिव होना है। Now we come to the next subject. Now we come to English. So basically in English में क्या है कि first of all you should increase your
रीडिंग हैबिट, और ये रीडिंग हैबिट आपकी इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द क्वेश्चंस लाइक द एलए क्वेश्चंस, लाइक जीएस क्वेश्चंस, क्योंकि नाउ योर एग्जामिनेशन इज पैसेज बेस्ड एंड यू आर हैविंग लिमिटेड टाइम। सो इंग्लिश में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंक्रीज योर रीडिंग हैबिट। अब सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग हैबिट इंक्रीज करनी है। सेकेंडली क्या करना है, you have to work upon vocabulary part. I have seen the very students, they come to me that and they say that sir we are weak in the vocabulary. So इसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। Our faculty provides you the best meanings of a particular day every day, ठीक है? And we are having the list of some important news or important words which have been collected from the Hindu or any other important newspaper. So उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। And if you will read all these words, then it will be very beneficial to all of you. Second क्या होता है कि अपनी रीडिंग हैबिट को एक शार्पन एज दीजिए। कैसे, आपको मैं बताता हूँ। सपोज आप किसी एक पैसेज को पढ़ते हैं और फर्स्ट टाइम जब आपने इसको पैसेज को पढ़ा, सो यू टुक 3 minutes, ठीक है? So you should try to read the passage quickly again. So your time should be minimized every time. Second point is that you should not read every word of the passage. आपको पैसेज का एवरी वर्ड नहीं पढ़ना है, भले ही वो पैसेज लॉ का हो, जीएस का हो, इंग्लिश का हो, एंड इट मे बी ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, you have to focus upon the important words of the passage. देखिएगा, पैसेज का हर वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। You will get around 450 words in your passage, and in the 450 words, around 50 words will be important from your 5 questions based or from the point of view of 5 questions. Means अगर आप 450 words पढ़ते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर आपको 50 वर्ड्स में ही मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड द 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू शुड रेफर टू द पैसेज, क्योंकि जब आपने पहले से आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे एंड यू विल सब्सिक्वेंटली रेफर टू द पैसेज, सो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, जब आप उस इंफॉर्मेशन को पैसेज में पाएंगे, सो दैट विल क्लिक देयर। तो यहाँ पर आपको जो 1 रीडिंग है, एक रीडिंग आप अपनी बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी पैसेज को पहले पैसेज पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको दोबारा से उस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडली, इफ यू विल फोकस अपॉन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पैसेज, तो हो सकता है कि आपका एक बार में ही पैसेज खत्म हो जाए और आप क्वेश्चन के आंसर सही दे दें। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि जब आप क्वेश्चन के आंसर देंगे, देखिएगा एक होता है एलिमिनेशन मेथड। एक पैसेज में यू विल हैव 5 क्वेश्चंस। जब आप 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। सो कई ऑप्शन तो ऐसे होते हैं बच्चों कि जो प्राइमा फेसा ही हमें लगता है कि नो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? एंड आई हैव अप्लाइड दिस प्रैक्टिस मेनी टाइम्स इन माय वेरियस एग्जामिनेशन। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन में से आप एक एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें। और एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि 2 ऑप्शन आपके ऐसे होंगे जो एब्सोल्युटली रॉन्ग होंगे, ठीक है? तो वहां पर उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देने की आवश्यकता। तो हेयर यू नीड टू फोकस ओनली अपॉन द 2 ऑप्शंस। सो 2 ऑप्शन में आपको काफी केयरफुल होना है, और उन 2 ऑप्शन में से आपको एक सही होगा, क्योंकि करेक्ट इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ना किसी न किसी ऑप्शन में। तो आपको फोकस उन 2 ऑप्शन पर करना है, और उस 2 ऑप्शन में से जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है उसको क्लिक करना है। दूसरी बात, यू नीड टू रीड एवरी ऑप्शन वेरी केयरफुली, क्योंकि एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर 1-2 ऑप्शन का या 2 ऑप्शन का एक वर्ड ही चेंज करेगा, और वहीं पर आपका आंसर या तो सही होगा या फिर आपका आंसर गलत होगा। सो नेवर कंप्रोमाइज इन द रीडिंग ऑफ योर ऑप्शंस। ऑप्शन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, और 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करो, फिर 2 जो बचे हुए हैं उन पर पूरे ध्यान से उसको पढ़ो। सेकेंडली, अब यहाँ पर कई क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि समटाइम्स एनी क्वेश्चन मे बी वेरी डिफिकल्ट। सपोज इफ आई टॉक अबाउट द लॉ, in law you will have 35 questions or 39 questions.
In 39 questions, you will get around 3 to 4 questions which will be very difficult. Similarly, you can apply in the case of mathematics. So mathematics में या किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, आपको 4 से 5 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सेक्शन के बहुत डिफिकल्ट होंगे. ऐसी सिचुएशन में इट इज माय सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. मीन्स अगर कोई क्वेश्चन है, भले ही वो मैथ का क्वेश्चन है, भले ही वो लॉ का क्वेश्चन है, आपसे वो नहीं हो पा रहा है, आप तुरंत से लीव कर दो, ठीक है, और छोड़कर तुरंत आगे बढ़ जाओ. क्यों? क्योंकि इफ यू विल गिव मोर टाइम टू दैट क्वेश्चन, you will need to compromise it in any other questions. Harshvardhan, I'm referring to the answer of Harshvardhan right now. So basically जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में दो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि काफी सिमिलर होंगे, सो उन दो ऑप्शन को आप 2 बार पढ़ें, ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम, और उसका जो एक एक वर्ड है उस पर फोकस करके चलें, क्योंकि वहीं पर आपका 1 सेकंड या 5 सेकंड की जो जल्दी है वो आपकी क्वेश्चन को गलत करा देगी. सपोज कि आपने किसी क्वेश्चन को 1 मिनट दिया है, ठीक है, और 1 मिनट में अगर आपने 5 सेकंड लापरवाही कर दी तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा. तो आप उन 2 ऑप्शन को जो आपने एलिमिनेट करे हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो आपके दो ऑप्शन बचे हुए हैं जिसमें कि आपके 50-50% चांसेस हैं, यू नीड टू फोकस अपॉन दोज 2 ऑप्शंस वेरी केयरफुली. और कैसे करेंगे आप? उनके एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हुए जाएं, उनके मीनिंग को समझें, तभी आप उसको टिक करें. सेकंड, मैं बात कर रहा था आपसे कि यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द डिफिकल्ट क्वेश्चन. आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है. देखिएगा आपके पास टाइम लिमिटेड है, पहले गो में आप वो सारे क्वेश्चन करते चले जाओ जो आपको आते हैं, ठीक है. और अब क्वेश्चन ये आता है, यू आर आल्सो हैविंग द नेगेटिव मार्किंग इन योर एग्जामिनेशन. सो अब आपको उसको कैसे करें? सो दिस इज माय सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू. अगर कोई क्वेश्चन बच्चों आपको बिल्कुल भी नहीं आता, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन, सो नेवर टच दैट क्वेश्चन. उस क्वेश्चन को बिल्कुल टच मत करो. दूसरी बात क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आपको 50-50 आता है, you are having the chance that either the option B or C may be 100% correct. So here you should take the risk. आपको ऐसे यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए, और जो करेक्ट ऑप्शन, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको लगता है वो करना चाहिए. दूसरी बात एक मैं आपको ये बताऊं, अभी रिसेंटली ट्रेंड क्या है, एग्जामिनर गिव 2 सिमिलर आंसर्स. 2 सिमिलर आंसर देता है, मतलब दो ऑप्शन होते हैं, दीज आर क्वाइट सिमिलर. अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि विच वन दे शुड चूज, 2 सिमिलर में से किसको चूज करना है. तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, हेयर यू मस्ट चूज दैट ऑप्शन विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज. क्योंकि भले ही वो प्रिंसिपल और भले ही वो क्वेश्चन लीगली करेक्ट हो, लेकिन आपको उसका आंसर प्रिंसिपल के आधार पर देना है. अगर प्रिंसिपल में उल्टा आंसर पूछा है, रॉन्ग प्रिंसिपल है, दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू द लॉ, स्टिल यू हैव टू रिलाई, स्टिल यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज. यहाँ पर एग्जामिनर बहुत गेम खेलता है आप लोगों के साथ, तो आपको वहां पर कॉशियस रहना है. तो अभी मैंने आपको बताया, डोंट गिव मच टाइम टू द क्वेश्चन. सेकेंडली, 2 ऑप्शन जो होंगे उसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे. थर्ड पॉइंट ये है कि अगर 2 ऑप्शन सिमिलर हैं तो उसमें से जो प्रिंसिपल के हिसाब से है, यू शुड टिक दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. नेक्स्ट क्या है, जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में आते हैं सबसे पहले उनको करते चले जाओ. सेकंड गो में वो देखो जो आपको 50-50% आता है, देन उसको अटेम्प्ट करो. अगर आपको नहीं आता है 50-50%, नेवर टच दैट क्वेश्चन. क्यों? इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? अगर आपने उस क्वेश्चन को टच किया जो आपको नहीं आता है, तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग और ये आपके सही क्वेश्चन को भी गलत करा देगा. सो दिस विल बी वेरी बैड फॉर यू. नेक्स्ट, इसमें क्या है कि आप वोकेबलरी पे फोकस करें, और आप जो ये टेस्ट है हमारे, जो कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश के, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यू मस्ट प्रैक्टिस अ लॉट of the previous question paper, and this statement is I'm referring this statement with respect to all the sections of law entrance examination.
सो आपको एलए के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, आपको जीएस के, मैथ, रीजनिंग सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया मिलता है अबाउट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। हर्षवर्धन जी या सभी स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुने, सबसे पहले हमें एलए को लेना चाहिए, देन वी शुड टेक जीएस एंड देन वी शुड टेक इंग्लिश, और फिर एलआर और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका। सो मैथ वाले पोर्शन को बच्चों सबसे आपको लास्ट में करना है। अब ऐसा आपको क्यों करना है, उसका पीछे रीजन है। अगर आप मैथ वाले चैप्टर पर आप चले गए, मैथ वाले पोर्शन पर आप चले गए, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है वहां पर, ठीक है, जिसका क्या होगा कि आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जो आपको आते होंगे। सो दिस इज माय सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू, पहले आप क्या करें, एलए, फिर जीएस, फिर इंग्लिश, मैथ को सबसे लास्ट में लें। क्यों? मैथ में बेसिकली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हमारे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के होते हैं, वहां पर they are not so good in the mathematics generally. This statement is generally. So if you are not good at the mathematics and if you will try to solve those questions, then you will waste your time. So you should follow this order which I have discussed with you. So now two sections will be taken by my colleague Alinji, and then I will and Alinji will answer your query. Alinji, please. थैंक यू सर फॉर द प्रेजेंटेशन। सो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो है लॉजिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग। सो जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि टाइम अभी आपके पास लिमिटेड है, यू ओनली हैव अराउंड 45 to 60 डेज। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो स्टेटमेंट, अजम्पशंस, ब्लड रिलेशन, इन्फरेंसेस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। तो इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, बिकॉज जो क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी है वो इन टॉपिक से ज़्यादा आती है। इनमें से जो सबसे क्रूशियल टॉपिक है और जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं या फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट। तो इसके लिए जो मेरी एडवाइस है, विच ऑल्सो हेल्प अ लॉट इन माई प्रिपरेशन ऑल्सो, वो ये है कि आप टॉपिक टेस्ट दीजिए स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू क्रिटिकल रीजनिंग। आप पहले केवल उन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए जो कि क्रिटिकल रीजनिंग से डील करते हैं, जैसे कि आप पहले उसे मास्टर कर लें, और जब आपका लॉजिकल का सेक्शन आएगा तब आप क्रिटिकल के पार्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी नहीं स्पेंड कर रहे हैं। और लॉजिकल का एक स्पेसिफिक फीचर ये है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के आते हैं, समटाइम्स दे आस्क वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और पजल्स, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और साथ में आप उसमें टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है दैट यू डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू एनी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, आपको लगेगा आप सॉल्व कर लेंगे टाइम देके, बट देयर इज अ लिमिटेड टाइम फॉर द एंटायर पेपर। तो आपको वो बैलेंस बना के रखना है, किसी भी क्वेश्चन से सरप्राइज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, आपने पहले उस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा है, देन सिंपली इग्नोर इट। आप ट्राई करिए, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है यू हैव टू इग्नोर द क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। और जनरली एनालिटिकल वाले पार्ट में ये एडवाइस दी जाती है कि यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से यू विल गेट मार्क्स। बट साथ में एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, दैट आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू ऑल्सो हैव टू इवेलुएट योरसेल्फ। आपने जो मॉक टेस्ट दिए हैं, जो टॉपिक टेस्ट दिए हैं, आफ्टर यू गिव द टेस्ट और आपके पास रिजल्ट या रिपोर्ट्स आ जाती हैं, देन यू हैव टू गो बैक एंड लुक एट दोज रिपोर्ट्स कि आपने किस टॉपिक में ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, किस टॉपिक में ज़्यादा टाइम दिया है, तो उसको कैसे मुझे टैकल करना है, राइट। तो अगर आप लॉजिकल के सेक्शन में स्पेसिफिकली रीडिंग वाले पार्ट में अगर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आपको उसको एक लिमिट के अंदर रखना होगा, जैसे बाकी सेक्शंस जो हैं वो अफेक्ट ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस सेक्शन में ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज कर लें। तो जो जनरल मैंने परसेप्शन देखा है वो ये है कि एनालिटिकल वाला पार्ट जनरली स्टूडेंट्स आर एबल टू अटेम्प्ट, बट द क्रिटिकल पार्ट इज जनरली ट्रिकी फॉर द स्टूडेंट्स। तो अगर एनालिटिकल पार्ट जल्दी हो जा रहा है तो उसको फिनिश करिए, बट क्रिटिकल के पहले टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करके उसको मास्टर कर लीजिए, जैसे एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। बट उसके लिए आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इस टॉपिक पे हम और बात करेंगे जब हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो और लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा है दैट इज मैथमेटिक्स। और इसमें जो एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का या मिथ है, दैट इज कि मैथ्स तो हमें आती है, हम इसको स्किप कर देंगे, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे जाते हैं कि हमने 10th तक की मैथ्स पढ़ी है, वही एग्जाम में आती है, वी विल बी एबल टू मैनेज। दैट इज वेरी रॉन्ग।
और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, यू कैन आस्क देम कि एक एक मार्क्स से कॉलेज चेंज हो जाता है, एक एक मार्क्स से आपकी बहुत सारी रैंक का चेंज आता है, और आपको हो सकता है फर्स्ट रैंक का कॉलेज मिल रहा हो, एक मार्क कम आए तो थर्ड रैंक का कॉलेज मिल जाए। तो जिन बच्चों ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया उनको इसका आइडिया होगा। तो किसी भी सेक्शन को आपको स्किप नहीं करना है, आप ऑर्डर अपना चेंज कर सकते हैं, बट यू हैव टू गिव एम्फेसिस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेजेस है, और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस काफ़ी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। तो स्किप नहीं करना है आपको, इसको पढ़ के जाना है। बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है व्हेन यू गिव एग्जाम्स ऑफ मैथ्स इन 10th और 12th एंड ALET एंड CLAT, द मेन डिफरेंस इज दैट यू विल हैव लिमिटेड टाइम। हम आपसे ये नहीं कहेंगे एग्जाम में दैट स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर लिखना है, क्योंकि इन बोर्ड्स यू विल हैव मार्क्स फॉर ईच स्टेप, राइट। बट क्लैट में इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, यू हैव टू गेट टू द राइट आंसर और इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, सबसे कम टाइम में आपको आंसर तक पहुंचना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करने लगेंगे तो भले ही आप राइट आंसर तक पहुंच जाएं, बट टाइम इतना लूज कर देंगे आप कि आपके बाकी सेक्शन जो है वो सफर करेंगे और यू विल मिस द मैथ सेक्शन। तो इम्फेसिस आपका इसमें ये होना चाहिए कि जो आपके टीचर्स है, जो आपके फैकल्टी है, उनसे आप पूछिए कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को जो सफिशिएंट टाइम है वो नहीं दे पाएंगे। और साथ में लास्ट ईयर के पेपर्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, जैसे कि दिनेश सर ने बोला है, सारे ही सब्जेक्ट्स में यू हैव टू यूज दिस स्ट्रैटेजी कि पास्ट ईयर पेपर्स में मॉक्स में किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। एलेट और क्लैट के मॉक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी पेपर्स भी काफ़ी हद तक उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हैं, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से टॉपिक्स ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप अटेम्प्ट करके देखिए उन पेपर्स को, और आप देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है, किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी लग रहे हैं, तो उन पर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी ये हो गई, बट कुछ क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए थे बिफोर द वेबिनार, हम उनसे डील करेंगे कि जनरली जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या फेस करने पड़ते हैं लॉ स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। और जनरली जब अराउंड 40 to 50 डेज बचते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती हैं ये चीज़ें। पहला जो क्वेश्चन जनरली बच्चे पूछते हैं वो है मोटिवेशन का, कि कैसे हम लोग मोटिवेटेड रहें। बिकॉज जैसा कि आपको पता होगा, क्लैट की प्रिपरेशन अब आपको थोड़ी लंबी करनी पड़ती है, वो ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप 10-15 डेज में इसको क्लियर कर लेंगे, राइट। यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स इनटू दिस एग्जामिनेशन। और बहुत सारा प्रेशर भी होता है, स्पेसिफिकली ऑन क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स, जो कि लास्ट 45 डेज 50 डेज में क्रैक करते हैं कि क्या होगा, हमारा कॉलेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। एंड देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ students who give this exam, right? There are only around 2,500 seats in CLAT and more than 55,000 students give this exam. तो इसमें बहुत कम बच्चों को ही अल्टीमेटली एक अच्छा एनएलयू मिलता है। तो ये प्रेशर स्टूडेंट अपने ऊपर फील करने लगता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसकी वजह से फोकस कंसंट्रेशन दोनों ही लूज आउट कर देता है। तो इसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस, तो मेरा फोकस रैंक और कॉलेज पे बहुत कम रहता था, राइट। एवरी डे आई डिड नॉट यूज टू थिंक कि मुझे एनएलयू दिल्ली चाहिए या नालसार चाहिए, एनएलएस चाहिए। मेरा फोकस होता था कि मैं कोर्स कितना कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि आपके सामने जो सिलेबस है, हाउ आर यू मैनेजिंग दैट, कितना सिलेबस आप कितने दिन में कवर कर रहे हैं, कितने टेस्ट दे रहे हैं, हाउ आर यू एनालाइजिंग योर मॉक्स। नॉलेज और लर्निंग वाले पार्ट पे मेजर फोकस आपका होना चाहिए। रैंक और मार्क्स जो है वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, आप जितना पढ़ेंगे उसी से डिसाइड होगा कि आपकी रैंक, कॉलेज, मेरिट कितनी आएगी। तो बहुत ज़्यादा मेरिट से इन्फैचुएटेड मत रहिए, मेन फोकस आपका प्रेजेंट में रखिए कि मुझे पढ़ना कितना है, कितने मॉक्स देने हैं, कितने मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रैंक और कॉलेज से फोकस रखेंगे तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकता है, कभी कभी मोटिवेशन चला जाता है बच्चों का, फिर पूरा फोकस हट जाता है। तो राइट, आपका जो फोकस होना चाहिए वो नॉलेज और लर्निंग वाले पार्ट पे होना चाहिए। अभी एक बार आप एग्जाम दे दें, देन यू विल हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू थिंक अबाउट कि कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, इन मार्क्स पे कट ऑफ कितना है। बट अभी के लिए फोकस केवल पढ़ाई पे रखिए, कॉलेज और रैंक को अभी किनारे रख दीजिए, राइट। नेक्स्ट जो इशू आता है, जो कि स्पेसिफिकली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आता है, जो स्कूलिंग भी साथ में कर रहे हैं या फिर बहुत कम टाइम बचा है, तो आप कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करें। बिकॉज एज यू नो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन क्लैट एंड एलेट। तो उन पांचों सब्जेक्ट्स को हमें बैलेंस कैसे करना है, कोई सब्जेक्ट मिस आउट ना हो। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शेड्यूल। और ये आप कोई भी वीडियो देखें, किसी भी मेंटोर से पूछेंगे, ही विल गिव यू द सेम एडवाइस कि यू हैव टू शेड्यूल योर वर्क, यू हैव टू शेड्यूल सो दैट यू आर एबल टू गिव सफिशिएंट टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अगर आप एक भी सब्जेक्ट मिस आउट करेंगे तो आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी, ये गारंटीड है। तो इसमें स्ट्रैटेजीज क्या क्या रहती हैं शेड्यूल बनाते समय, मैं आपको वो बता देता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी जब आप फाइनल शेड्यूल अपना क्रिएट करेंगे।
तो यू हैव अराउंड 45 to 50 days राइट नाउ। तो पहली जो स्ट्रैटेजी मुझे बहुत हेल्प करी थी मेरी प्रिपरेशन के दौरान, दैट इज इंटरलीविंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम सारे सब्जेक्ट को इस तरह से मिक्स करें कि कोई भी सब्जेक्ट मिस आउट ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप 5 दिन केवल लीगल को ही मत दीजिए कि बाकी सब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया, हम सोचेंगे 5 दिन बाद हम बाकी सब्जेक्ट को देखेंगे। दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। आपको इस तरह से अपना शेड्यूलिंग बनाना है जैसे सारे सब्जेक्ट को आप साथ में लेकर चल सके। फॉर एग्जाम्पल एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, नेक्स्ट डे में आप जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं उनको कर रहे हैं, जैसे 2-3 डेज के इंटरवल पे सारे सब्जेक्ट का रिविजन होता जा रहा है साथ में। तो इसको बेसिकली आपको मिक्स करना है अपने सब्जेक्ट को, सो दैट पैरेलली सारे सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं। इससे आपको रिटेंशन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा ब्रेक हो गया 2 सब्जेक्ट के बीच में तो आप मेमोरी की दिक्कत होगी कि आप भूलने लगेंगे चीज़ें। ये सारे इश्यूज नहीं होंगे अगर आप इंटरलीविंग करेंगे, सारे सब्जेक्ट को मिक्स करेंगे। तो ये बहुत एफिशिएंट तरीका है और ये बहुत एटलीस्ट मेरी बहुत हेल्प हुई थी इस तरीके से व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एलेट एंड क्लैट। सेकेंड, शेड्यूल बहुत बच्चे बना भी लेते हैं। व्हेन आई स्ट्रांगली रिकमेंड देम टू मेक अ शेड्यूल, बहुत बच्चे बना लेंगे शेड्यूल, बट व्हेन आई फॉलो अप विद देम दे से कि शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, हमने शेड्यूल तो बना लिया है बट फॉलो ही नहीं हो पा रहा है, तो किस काम का वो शेड्यूल। तो हर शेड्यूल के एंड में, फॉर एग्जांपल अगर 5 वीक का शेड्यूल है आपका, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप वीकली या फिर 15 डेज के एंड पे उसका रिव्यू करें, राइट कि मेरा शेड्यूल ये था बट क्या मैं उस शेड्यूल को फॉलो कर पाया हूँ या नहीं, और अगर नहीं कर पाए तो उसके रीजंस क्या थे, उनको आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा एंड ट्राई टू मेक श्योर कि वो रीजंस रिपीट ना हो। ओके कि अगर आपने इस वीक अपना शेड्यूल मिस कर दिया है तो जिस वजह से मिस करा है वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो शेड्यूल बनाने का कोई पर्पस नहीं है। शेड्यूल इन इटसेल्फ वोंट हेल्प यू इन द एग्जाम। आप उसको फॉलो करें, आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। और लास्ट जो तरीका है, इन्फोर्स कैसे करें उस शेड्यूल को, क्योंकि इन्फोर्समेंट वाले पार्ट में बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाते हैं। तो इन्फोर्समेंट बेसिकली क्या है, अगर आप अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, राइट, मेक श्योर यू इंसेंटिवाइज योरसेल्फ कि आप अपने आप को इंसेंटिव्स दे रहे हैं टू फॉलो योर शेड्यूल। अगर आप फॉलो अपना शेड्यूल कर रहे हैं तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। मे बी कि आप 1 घंटे के लिए बाहर खेल सकते हैं वीकेंड पे अगर आप अपना पूरा शेड्यूल डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो द शेड्यूल देन ऑल्सो यू हैव टू इंश्योर कि आप अपने आप को पेनलाइज कर रहे हैं, जैसे आप डिस्करेज हो कि आप शेड्यूल को अपने फॉलो ना करें, राइट। तो अगर आपने शेड्यूल अपना फॉलो फॉर एग्जाम्पल नहीं करा 1 वीक, तो आप बोलिए कि एंड में वीकेंड पे मैं खेलने नहीं जाऊंगा दोस्तों के साथ या फिर मोबाइल नहीं यूज़ करूंगा, तो इससे आप खुद ही अंदर से इंकरेज होंगे टू फॉलो योर शेड्यूल। और अल्टीमेटली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो शेड्यूल बना रहे हैं वेदर यू आर फॉलोइंग इट और नॉट। शेड्यूल बना के रख देना इज वेरी इजी, सब लोग बनाते हैं, बट फॉलो करना वही की है टू सक्सेस इन द एग्जामिनेशंस। जो लास्ट पार्ट है ये भी बहुत ही रिपीटेटिव पॉइंट है, जो कि आप कोई भी अगर सेशन देखेंगे हाउ टू क्रैट और एलेट, तो सब लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करो और देखो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, बट ये कैसे करना है ये बच्चों को इस पर क्लैरिटी नहीं है। हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, हाउ टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस। तो एक बहुत ही फेमस कोट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने बोला था देयर आर 3 थिंग्स एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत मुश्किल है, स्टील अ डायमंड एंड टू नो वन सेल्फ। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई कर पाना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि मुझे मेरा टीचर बता देगा या मेरा फ्रेंड बता देगा। आपको खुद से टाइम एफर्ट देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो कैसे करना है हम वो बता सकते हैं, बट जो टाइम और एनर्जी है वो आप ही को देनी पड़ेगी, राइट। तो पहले तो एक इशू ये आता है मेंटल लेवल पे दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि हमारी कोई वीकनेस है ही नहीं, हम सब कर लेंगे। दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, एग्जाम आएगा तो एग्जाम हम क्रैक कर लेंगे, हम ही बने एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर ये वाला एक एटीट्यूड रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा टू क्लियर द एग्जामिनेशंस। तो पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट यू हैव वीकनेसेस जिस वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट में जाना होगा। तो जो वीक एरियाज जनरली आपके होते हैं उसमें मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट होगा। सो एनालाइज योर मॉक्स, एनालाइज योर सेक्शनल टेस्ट, और उसमें आप देखिए कि किन सेक्शंस में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। हो सकता है इंग्लिश में मार्क्स कम आ रहे हैं, हो सकता है लीगल में आ रहे हैं, या लीगल के स्पेसिफिक किसी टॉपिक में आ रहे हैं। तो पहले उसको आइडेंटिफाई करिए कि कंसिस्टेंटली किस टॉपिक में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। और तरीका ये है कि जब आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको स्टडिंग के दौरान ही पता चल जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स, या मुझे ये टॉपिक्स जो है बहुत टेक्निकल लग रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको ये इंडिकेशन मिलना चाहिए दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक और सेक्शन इज योर वीकनेस एंड यू हैव टू गिव मोर टाइम टू इट। और आप ट्राई करिए कि जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है या
बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग लग रहा है पढ़ने में, तो आप उसको और टाइम देके पढ़िए। और अगर तब भी क्लैरिटी नहीं हो रही, यू ऑलवेज हैव द टीचर्स टू हेल्प यू। ठीक है, आप टीचर्स के पास जाइए, डाउट्स देकर पूछिए कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि ये मेरी वीकनेस ना हो व्हेन आई गो टू गिव द क्लैट और आइलेट एग्जामिनेशन। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि अभी 45 और 50 डेज में काफ़ी क्रूशियल है आपके लिए। इनफैक्ट इतना क्रूशियल है कि आई विल से कि यही डिटरमाइन करेगा कि फाइनली आपका एग्जाम क्लियर होता है कि नहीं, वो है मॉक्स। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मॉक्स दिए थे अपनी प्रिपरेशन में, एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। तो मॉक जब आप देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स का मॉक है अगर क्लैट का, मॉक देने के बाद ऐसा नहीं है स्कोर आ गया खत्म। मेन आपका जो चैलेंज है वो मॉक देने के बाद शुरू होता है। यू हैव टू गो बैक एंड एनालाइज द मॉक। देखना पड़ेगा कि किस में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, राइट? टाइम इज ऑल्सो अन इशू। टाइम के बाद आपको देखना है किस में मार्क्स ज़्यादा कम आ रहे हैं। अगर ज़्यादा कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसको कंपैरेटिवली कम टाइम भी दे सकता हूँ। बट जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना उस पॉइंट पे ज़रूरी है। किसी सेक्शन में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसको ट्राई करिए कि और आप टाइम डिवोट कर रहे हैं उसको पढ़ाई के दौरान। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, यू कैन गो टू द फैकल्टी। तो मॉक का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये नहीं कि आपके मार्क्स कितने हैं या सेक्शंस में स्कोर कितने आ रहे हैं या आपकी रैंक कितनी है। मॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर पा रहे हैं या नहीं। वही असली यूटिलिटी है जिसको बच्चे मिस आउट करते हैं, राइट? तो मॉक्स के बाद एनालिसिस को आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम देना होगा। आई यूज टू गिव अराउंड 1 to 2 hours टू एवरी मॉक, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, मॉक देने के बाद में 1 से 2 घंटे देता था टू एनालाइज द मॉक। ठीक है, तो मॉक देने के बाद उसको बस छोड़ मत दीजिए। और इसके बाद भी अगर आपके डाउट्स हैं, क्योंकि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जामिनेशन, सबसे बड़ा मेरा कंफ्यूजन ये था कि देयर आर सो मेनी एग्जामिनेशंस, देयर आर सो मेनी कॉलेजेस। इंडिया में अराउंड 1000 लॉ स्कूल्स हैं जो कि लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन मेरा ये था कि किसके लिए मैं प्रिपेयर करूँ, हाउ टू प्रिपेयर, विच लॉ स्कूल इज़ गुड, विच लॉ स्कूल इज़ बैड, मेरे करियर के लिए कौन सा लॉ स्कूल इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ई बुक है जो कि काफ़ी हॉलिस्टिकली सारे इश्यूज को कवर करती है जो कि एक लॉ स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड है। वाई इज़ द करियर ऑफ लॉ सो स्पेशल, मतलब लॉ के करियर में ऐसा है क्या कि इतने बच्चे आज लॉ स्कूल के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अराउंड 50 to 60,000 बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं। तो लॉ के करियर में ऐसा क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के पीछे आ रहे हैं, ये इस बुक में हम लोग डील करते हैं। लॉ करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, राइट? लॉयर तो केवल एक स्पेसिफिक ऑप्शन है, देयर आर मेनी ऑप्शंस आफ्टर लॉ। आप जज बन सकते हैं, यू कैन इंटर्न टू सिविल सर्विसेज, कॉर्पोरेट लॉ। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं उनसे भी हमने डिटेल में डील किया है। हाउ टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस, तो इसमें आपको किस ऑर्डर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जैसा दिनेश ने भी हिंट दिया, बट इसमें और डिटेल में लिखा है कि किस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, सो दैट यू आर इफेक्टिवली एबल टू गिव टाइम टू ईच एंड एवरी सेक्शन। ये सारी चीज़ें भी, टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, ये भी हमने कवर करा है। कौन से बेस्ट लॉ कॉलेजेस हैं, अब जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं इंडिया में, बट बेस्ट कौन सा है और किस बेसिस पे वी कैन से दैट दिस कॉलेज इज बेस्ट। तो हमने इसमें लेटेस्ट रैंकिंग्स का यूज़ किया है। 2021 की जो रैंकिंग्स है उनके बेसिस पे हमने इसमें लिस्ट क्रिएट करी है जिसमें यू विल फाइंड ऑल द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कब एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इतने सारे लॉ कॉलेजेस हैं तो एग्जाम की डेट्स भी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। तो हमने उसको कोलेट करा है और यहाँ पे सारे एग्जाम्स की डेट, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट, डेडलाइन, ये सब कुछ आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है जो कि जनरली लॉ स्टूडेंट्स अभी कंसिडर नहीं करते, बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पैरामीटर, वो ये है कि फीस क्या है लॉ स्कूल्स की, राइट? तो ये शायद मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, एनएलयूज की फीस बहुत ज़्यादा है। तो एवरेज फीस अगर हम देखें तो 2 से 2.5 लाख पर ईयर है एक एनएलयू की फीस। इनफैक्ट कुछ एनएलयूज की फीस 3 लाख के भी ऊपर है पर ईयर। तो सारी फीस क्या है हर कॉलेज की, डीयू की फीस कितनी है, एनएलयू की कितनी है, ये भी आपको इस ई बुक में मिलेगा, राइट? और फाइनली, क्योंकि हमने क्वेश्चंस भी आपके देखे थे, यू आल्सो आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू साइंड अप फॉर दिस वेबिनार, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन से डील करेंगे जो स्टूडेंट्स से जनरली पूछे थे। तो पहला जो क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव था, ज़्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को पूछा था, हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हमें कैसे इम्प्रूव करना है। तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था वो ये था कि मैंने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं बट मेरे सही 60 ही हो रहे हैं, तो मेरे मार्क्स बहुत लो आ रहे हैं, राइट? तो इसका पहला जो आंसर है वो दिनेश सर ने भी इंडिकेट किया था कि आपको गेस वर्क नहीं करना है। इफ यू डोंट नो द आंसर, स्किप द क्वेश्चन। आपको वहाँ पे गेस के थ्रू या अपने लक पे रिलाई नहीं करना है। नहीं आता तो क्वेश्चन को स्किप करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप गेस वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लैट एलेट बोथ आर नेगेटिव मार्किंग बेस्ड, तो दोनों में आप मार्क्स बहुत सारे लूज आउट करेंगे। सेकेंड, हम आते हैं मॉक एनालिसिस वाले पार्ट पे। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरी इनएक्यूरेसी का रीज़न क्या है।
वाई माई एक्यूरेसी लेवल इज सो लो, कि आपको टाइम का इश्यू आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, या फिर आप किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मे बी आप क्रिटिकल के सेक्शन में या मैथ्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स लूज कर रहे हैं ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है इनएक्यूरेसी का। सबका रीज़न अलग अलग हो सकता है, किसी को टाइम का इशू होगा, किसी को कॉम्प्रिहेंशन का इशू हो सकता है कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। सो मॉक एनालिसिस को आप एनालाइज करिए कि आपके इनएक्यूरेसी का रीज़न क्या है, फिर उसको मास्टर करने की कोशिश करिए, उसको टाइम और एफर्ट ज़्यादा दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है कि हाउ टू कवर करंट अफेयर्स एंड रिटेन इट। राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि जो 1 ईयर से पढ़ रहे हैं उनके पास बहुत टाइम था टू कवर करंट अफेयर्स, वो डेली पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बट यू हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द इंटायर करंट अफेयर्स, जो कि 1 साल की है। सेकेंड इसका क्वेश्चन ये है कि रिटेन कैसे करना है इतने सारे जीके और करंट अफेयर के प्रिंसिपल्स और नॉलेज को। तो पहला जो इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि डेली आपको रीडिंग करनी है। ये एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं स्ट्रेस देके हमेशा बोलता हूँ दैट यू हैव टू गिव टाइम टू इट डेली। डेली न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने हैं, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, और आपको ट्राई करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप उसके पढ़ रहे हैं। और सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मॉड्यूल्स हमारे पास है जीके की, या अगर आप कोई और मॉड्यूल रेफर करना चाह रहे हैं जिसमें सारी करंट अफेयर्स का समरी होता है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है ऑनलाइन डीएनए के, डेली न्यूज़ एनालिसिस के, आप उनको देख सकते हैं जैसे आपका रिविजन होता रहे। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन हाउ टू रिटेन द करंट अफेयर्स, ये है ग्रुप डिस्कशन का। ठीक है, तो वीकली या फिर मंथली बेसिस पे यू कैन ट्राई कि आप ग्रुप में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। तो इससे होगा क्या, आप अपनी सारी नॉलेज को पूल कर रहे हैं, यू आर पूलिंग योर नॉलेज। जैसे किसी बच्चे ने कोई एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस दिया होगा, दूसरे ने कोई और पार्ट ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा, तो व्हेन यू डिस्कस आप नॉलेज शेयर करेंगे और आप सबको इम्प्रूवमेंट होगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ग्रुप डिस्कशन है यू डू इट विद अ क्लियर एजेंडा। ऐसा ना हो कि आप वहाँ मिल के बैठ गए और इधर उधर की बातें हो रही, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एक एजेंडा के साथ बैठिए कि हमें ये डिस्कस करना है इन टॉपिक्स को, उसको फिनिश करिए और आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। और जो फाइनल क्वेश्चन है ये सभी ने पूछा है कि हाउ टू क्रैक क्लैट आईलेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। और आई गेस अराउंड 20 बच्चों के यही सवाल थे, इसी लाइंस पे थे कि क्लैट आईलेट को कैसे क्रैक करें। तो पहले तो एक मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो कि मुझे भी पढ़ाई गई थी जब मैं पूछ रहा था अपने टीचर से कि कैसे क्रैक करें किसी भी एग्जामिनेशन को। सो ऐसे ही क्वेश्चन एक बहुत फेमस फिलोसफर थे सोक्रेटिस, उनसे भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मुझे नॉलेज चाहिए, आई नीड नॉलेज, प्लीज गिव मी नॉलेज। तो सोक्रेटिस जो कि बहुत फेमस ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने बोला ठीक है हम नॉलेज देंगे, बट फर्स्ट आई नीड टू नो कि क्या तुम्हें सच में नॉलेज चाहिए कि नहीं। तो वो स्टूडेंट को ले जाते हैं एक रिवर के पास में, और उसका जो हेड है वो पानी के अंदर डाल देते हैं। ही पुट्स द हेड ऑफ द स्टूडेंट इनसाइड द वाटर, जैसे वो सांस नहीं ले पाता है। फिर सॉक्रेट्स उनसे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। स्टिल ही सेज कि मुझे नॉलेज चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम सॉक्रेट्स उसका जो हेड है वो पानी के अंदर डालते हैं, और इस टाइम जो टाइम होता है वो बहुत लेट तक वो अंदर रहता है सर उसका। ठीक है, पहली बार 10 सेकेंड्स के लिए डालते हैं, तो सेकंड टाइम 50 सेकेंड्स के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए डालते हैं। फिर जैसे ही उसका सर बाहर निकालते हैं वो कहता है मुझे एयर चाहिए, आई वॉन्ट टू ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो सॉक्रेट्स उनसे फिर एंड में बोलते हैं जब तुम्हें इतने ही पैशन से नॉलेज चाहिए होगी जितने पैशन से तुम्हें एयर चाहिए थी, तब तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी। तो यही स्टूडेंट्स को भी इससे एक लेसन मिलता है कि अगर आपको सीरियसली क्रैक करना है क्लैट आइलेट को, तो जो हमने गाइडलाइंस बताई है उसको फॉलो करिए और रिस्पेक्ट दीजिए उस एग्ज़ाम को। अगर आप इस बिहेवियर इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो ये एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, हम देख लेंगे, या फिर कुछ नहीं हो रहा तो हम क्लैट दे देते हैं, तो फिर नहीं क्लियर होगा। अगर वो बर्निंग डिज़ायर है आपके अंदर, वो पैशन है टू क्लियर क्लैट आइलेट या फिर लॉ स्कूल में जाने का, तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको 15-15 घंटे तैयारी करनी होगी तभी क्लियर होगा, बट आपको इस एग्ज़ाम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। नाउ we'll ask questions, we'll take up questions from all the students। तो जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स बॉक्स। और ऑल्सो जो ई बुक को मैंने रेफर किया उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में है, सो यू कैन गो अहेड एंड डाउनलोड इट। और यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.lawentranceindia.com। उस पर भी ई बुक अवेलेबल है और ये फ्री है, तो आप लोग सब इसको रेफर कर सकते हैं। राइट, तो आपके जो क्वेश्चन है यू कैन गो अहेड एंड आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस विच यू हैव। फिर करंट अफेयर्स को कौन से मंथ से करना है? ओके, करंट अफेयर्स को कौन से मंथ से करना चाहिए?
तो जनरली तो क्योंकि पूरे ईयर का करंट अफेयर्स आता है, इट इज आस्क्ड फ्रॉम द इंटायर 1 ईयर, बट उस ईयर का करंट अफेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लैट अगर मई में कंडक्ट हो रहा है, तो इस ईयर के जो जनवरी से अप्रैल के एंड तक के जो करंट अफेयर्स हैं क्लैट के पहले जितने भी इस ईयर के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो उसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी करंट अफेयर्स को इग्नोर करना होगा, बट एम्फेसिस जो होगा वो उस ईयर के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा होगा, बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं सेम ईयर से, राइट। और चैट बॉक्स में और भी क्वेश्चंस हैं। दिनेश सर, if you would like to answer these questions from Shivli and Akansha. Can you refer the question, Nalin ji? Yeah, Shivli has asked, is that important to attempt questions of each subject? Yes, शिवली इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से अटेम्प्ट करना, क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़े और स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो अदर स्टूडेंट्स को आता है वो आपको भी आना चाहिए। ठीक है, बट इफ एनी क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी स्टूडेंट देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। मीन्स अगर कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और वो सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है, तब आपको उस पर बिल्कुल भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सबका गलत जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है और स्टूडेंट उसको कर सकते हैं और आप उसको नहीं करेंगे, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। Okay, thank you, sir. Okay, and then Akansha has asked that how much is the fees, sir? तो फीस जो है हर कॉलेज की डिफरेंट है, जैसे कि मैंने बताया ई बुक में यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस एंड देयर फीस, बट जनरली जो एवरेज है एनएलयूज का वो अराउंड 2 लाख के आसपास फीस है पर ईयर एक एनएलयू की, राइट। तो अराउंड 5 ईयर्स में आपकी फीस 10 लाख पहुंच जाती है। और कुछ कॉलेजेस की फीस जैसे एनएलएस है बैंगलोर की फीस इज अराउंड 2.9 लाख पर ईयर, तो उसमें 5 ईयर्स की फीस अराउंड 15 लाख पहुंच जाती है। तो दे आर कॉस्टली, बट बाकी कॉलेजेस की फीस अब ओके कोचिंग की आप फीस पूछ रहे हैं, तो कोचिंग की फीस आपको अगर आपको क्रैश कोर्स करना है या फिर 2023 के क्लैट के लिए अप्लाई करना है उस पर डिपेंड करती है। तो क्रैश कोर्स की फीस इज अराउंड 25,000, और बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स है उसकी फीस आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, राइट। क्रैश कोर्स की फीस इज बट 25,000, जो कि अभी से शुरू होगा और जब हमारा क्लैट कंडक्ट होगा मई में तब तक कंटिन्यू करेगा। दिव्यांका, आपको नोट्स नहीं बनाने। बेसिकली इफ यू विल प्रिपेयर नोट्स तो इट विल रिक्वायर ए लॉट ऑफ टाइम, आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम डीएनए एनालिसिस करते हैं उससे आप रेफर करें। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताएंगे, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देंगे वो ही आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट होंगे, क्योंकि एक 15-16 पेज के न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में काफी आपको टाइम लग जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बच्चों फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इस एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है। क्योंकि आपको अगर ये पता है कि आपको छोड़ना क्या है तो आप एग्जाम जल्दी क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आप रिटेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको फोकस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि एग्जामिनर हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे और हर सब्जेक्ट वाइज हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, हर्षवर्धन जी का क्वेश्चन है, सर लीगल जीके दोनों को लिंक करके किस मंथ से कर लेना सही है? देखिएगा हर्षवर्धन जी, जीएस तो जैसे है कि आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर लें, ठीक है, और जो करंट लीगल जीके है, करंट लीगल पॉइंट है, उसको भी लास्ट 6 मंथ आप देखें। तो लास्ट 6 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, और लॉ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो केस लॉज हैं जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10-10 केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम आपको वो 10 केसेस बताएंगे जिन 10 केसेस को पढ़ के आप क्वालिफाई कर जाएंगे और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ शिवली, हम आपको अब धीरे धीरे प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, ताकि आप फोकस करें उस पर और आपको आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो।
हाँ, ये दीपांशी जो क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं तो लास्ट में आप उसको एक बार देखें, लेकिन लास्ट में क्या करें, आपको उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसका आपको 50-50 आइडिया है। अगर किसी क्वेश्चन का आपको 50-50 आइडिया नहीं है तो आपको बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, वो क्वेश्चन 100% आपका गलत होगा। अगर 50-50 आपके पास चांसेस है, आपको लगता है कि ऑप्शन बी और इधर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इज करेक्ट, तब आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें, लेकिन 50-50 से ज्यादा पे बिल्कुल रिस्क ना लें, वो गलत हो जाएगा आपके साथ। ठीक है दीपांशी? ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? गाइस, कांटेक्ट नंबर बहुत बच्चे मांग रहे हैं, तो हम लोग का कांटेक्ट नंबर जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वैसे हम लोग कमेंट बॉक्स में भी डाल दे रहे हैं, यू कैन कॉल एट द नंबर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और किसी भी फैकल्टी से भी आपको बात करनी होगी सो यू कैन टॉक ऑन दैट गिवन नंबर। राइट, तो मैंने नंबर शेयर कर दिया है, तो जिसको भी बात करनी हो मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकता है इस नंबर पे। Excuse me, sir. हाँ Sir, the link you had sent in the comment box, can you please share it in our WhatsApp group? ओके, श्योर, विल शेयर दैट। Okay, thank you, sir. वेलकम वेलकम। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्लैट, एलेट और अदर लॉ एंट्रेंस जो टेस्ट? कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप प्लीज पूछ सकते हैं। No, sir. ओके, ऑल राइट, ठीक है दिनेश सर, आई थिंक दे हैव ऑल आस्क्ड द क्वेश्चंस। नाउ वी कैन रैप इट अप। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग देयर, एंड ई बुक आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई डाउट्स हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक Thank यू you, अनिल जी, sir. थैंक यू वेरी मच अनिल जी। सो नाउ वी विल रैप अप